139 subsection 1 who should file the return of income? Individual, HUF, AOP, BY, AJP. If gross total income exceeds basic exemption, then they should file the return of income. Company / firm, they should file return of income irrespective of income or loss, irrespective whether business has started or not. As soon as the company is incorporated or partnership deed is signed, they are required to file the return of. What are the due dates of filing of return? Explanation to section 139 subsection 1. Any person who is required to file transfer pricing audit report, last date of filing of return is 30th November of AY1. AY1 कीजिए इसको. कंपनी को कब रिटर्न ऑफ इनकम फाइल करना है? 30th September of AY1. A person other than company whose accounts are required to be audited under any law. तो वॉलंटरी ऑडिट कवर्ड नहीं है, लॉ का रिक्वायरमेंट है तभी होगा, टाइम लगता है, इसीलिए इसका ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ रिटर्न क्या है? 30th September of AY1. Fourth, a working partner of a firm whose accounts are required to be audited under any law. वर्किंग पार्टनर को रेम्यूनरेशन मिलता है. रेम्यूनरेशन डिपेंड्स अपॉन दी बुक प्रॉफिट. तो अगर फर्म का ऑडिट कंपलसरी है तभी बुक प्रॉफिट के बारे में पता लगेगा, इसीलिए वर्किंग पार्टनर का 30th September of AY1 है. लेकिन अगर स्लीपिंग पार्टनर है, उसको रेम्यूनरेशन नहीं मिलता है, उसका केस एनी अदर एसएससी में फॉल करेगा और उसके लिए लास्ट डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ रिटर्न क्या है? 31st July of AY1. इन केस ऑफ एनी अदर एसएससी में कौन कौन से केस कवर हो जाएंगे? जो सिर्फ सैलरी से पैसा कमा रहा है, सिर्फ हाउस प्रॉपर्टी से पैसा कमा रहा है, सिर्फ कैपिटल गेन से पैसा कमा रहा है, या फिर इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस. सेक्शन 142 सबसेक्शन 1. अगर एसएससी 139 सबसेक्शन 1 में खुद ब खुद रिटर्न फाइल नहीं करता है तो 142 में असेसिंग ऑफिसर नोटिस भेज के रिटर्न ऑफ इनकम फाइल करवा देता है. उसी नोटिस में लिखा होता है कितने दिन के अंदर रिटर्न ऑफ इनकम फाइल करना है. तो नंबर 1, कैन एओ इश्यू नोटिस टू एसएससी फॉर फाइलिंग ऑफ रिटर्न ऑफ इनकम? यस. Is SSC bound to file return of income under section 142 subsection 1? Yes, even if his total income is less than basic exemption. What is the time limit for filing of return of income as specified in the notice? When can notice under section 142 subsection 1 be issued? At any time after due date or after AY1. Loss return. Loss return अगर नहीं फाइल करेगा तो लॉस कैरी फॉरवर्ड नहीं होगा. लेकिन दो लॉस कैरी फॉरवर्ड हो सकते हैं, एक हाउस प्रॉपर्टी का लॉस और दूसरा अनअब्जॉर्ब्ड डेप्रिसिएशन. लॉस रिटर्न कब फाइल करना होगा? 139 सबसेक्शन 1 में जो ड्यू डेट लिखा हुआ है उस टाइम लिमिट के अंदर फाइल करेगा तभी लॉस कैरी फॉरवर्ड हो सकता है. नंबर 1, इज इट कंपल्सरी टू फाइल लॉस रिटर्न? यस, इफ एसएससी विशेस टू कैरी फॉरवर्ड दी लॉसेस. For company or firm, it is compulsory to file return of income, whether loss or profit. What is the time limit of filing of loss return? Loss return should be filed on or before the due date of filing of return, that is, on or before 30th September or 31st July. Then only loss can be carried forward and set off. Consequences if loss return is not filed in time. Following losses cannot be carried forward. Number A, business loss. B, speculation loss. C, capital gain loss. D, loss from activity of owning and maintaining race horses. Following losses can be carried forward and set off even if loss return is not filed. A, loss from house property and unobserved depreciation. What if loss return is filed in time as specified in section 142 subsection 1? Loss cannot be carried forward since loss return is filed after due date. क्योंकि 142 का नोटिस जब भी आएगा ड्यू डेट के बाद आएगा, और अगर आप 142 के अकॉर्डिंग फाइल भी कर रहे हैं है तो ओरिजिनल रिटर्न, लेकिन लॉस कैरी फॉरवर्ड नहीं होगा क्योंकि 139 सबसेक्शन 3 कह रहा है कि लॉस तभी कैरी फॉरवर्ड होगा जब 139(1) के अकॉर्डिंग रिटर्न फाइल हो. बिलेटेड रिटर्न, जो रिटर्न आप लेट फाइल करते हैं वो बिलेटेड रिटर्न है.
आपको रिटर्न फाइलिंग करने के लिए 1 साल का टाइम दिया गया, जिसको हमने AY1 कहा। 1 साल और ले लो, वो AY2। और अगर आप रिटर्न फाइल नहीं करते हैं तो आपका बेस्ट जजमेंट असेसमेंट हो जाता है। तो व्हाट इज द लास्ट डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ बिलेटेड रिटर्न? ऑन और बिफोर AY2 और बिफोर द डेट ऑफ बेस्ट जजमेंट असेसमेंट ऑर्डर, whichever date is earlier। पढ़िए, what is belated return? The return which is not filed in time, that is the return which is filed after the due date of filing of return under section 139 subsection 1 or filed after time specified in notice under section 142 subsection 1। तो दो टाइम है, 139 1 के बाद फाइल करे या 142 1 के बाद फाइल करे, उसको हम कहेंगे belated return। What is the time limit of filing of belated return? It should be filed by AY2 or before the completion of assessment, whichever date is earlier। कौन सा assessment के बारे में बात कर रहा है ये? Best judgment assessment। Consequences of filing of belated return: A, the losses mentioned under section 139 subsection 3 is not allowed to be carried forward। B, belated return cannot be revised। C, liable for penalty of interest under section 234A। D, penalty can be levied under section 271F। 139 subsection 5 revised return। रिटर्न रिवाइज कब करते हैं? अगर रिटर्न में गलती हो, और दो तरह की गलतियां मैंने बताई थी, एक है रॉन्ग स्टेटमेंट और दूसरा है ओमिशन। रिवाइज रिटर्न आप कब तक कर सकते हैं? AY2 तक, लेकिन अगर उससे पहले असेसमेंट हो गया है तो उससे पहले, whichever date is earlier। पढ़ते हैं। नंबर 1, why the return should be revised? The return is revised if there is any mistake in the original return। Mistakes are of two types, wrong statement and omission। Wrong statement का मतलब रिटर्न में लिखा है लेकिन गलत लिखा है। Omission का मतलब आपने रिटर्न में लिखा ही नहीं है। Which return can be revised? Only original return can be revised। The return which is filed in time as per section 139 subsection 1 or under section 142 subsection 1 is called original return। What is the time limit of filing? What is the time limit of filing revised return? It should be filed by AY2 or before the completion of assessment, whichever date is earlier। यहाँ पर assessment का मतलब बताइए क्या है? Best judgment assessment या फिर scrutiny assessment, whichever date is earlier। Consequences of filing of revised return: a revised return substitutes the original return from the date original return is filed। मैंने कहा था आपको कि सिर्फ डेट सब्स्टिट्यूट नहीं होता, उसका कंटेंट भी सब्स्टिट्यूट हो जाता है। इफेक्ट ऑफ फाइलिंग ऑफ रिवाइज रिटर्न, अदर पॉइंट्स। A belated return cannot be revised। B, a revised return can further be revised if filed in time allowed। आप जितनी बार गलती सुधारना चाहते हैं आप सुधार सकते हैं। 140 साइनिंग ऑफ रिटर्न। इंडिविजुअल है तो वो खुद साइन करेगा। अगर इंडिविजुअल इंडिया में नहीं है तो जिसके पास वैलिड पावर ऑफ अटॉर्नी है वो साइन कर लेगा। अगर वो मेंटली इनकैपेसिटेटेड है तो गार्जियन साइन कर लेगा। फॉर एनी अदर रीजन जिसके पास वैलिड पावर ऑफ अटॉर्नी है। HUF है तो कर्ता साइन करेगा। कर्ता एब्सेंट फ्रॉम इंडिया है तो एनी मेंबर ऑफ द फैमिली नॉट बीइंग ए माइनर साइन कर लेगा। वहां पर पावर ऑफ अटॉर्नी की जरूरत नहीं है। कंपनी के केस में मैनेजिंग डायरेक्टर साइन करेगा। मैनेजिंग डायरेक्टर नहीं है तो कोई भी डायरेक्टर साइन कर लेगा। और अगर नॉन रेजिडेंट कंपनी है तो जिसके पास वैलिड पावर ऑफ अटॉर्नी है वो साइन कर लेगा। और कंपनी अगर लिक्विडेट हो रही है तो जो लिक्विडेटर है वो साइन कर लेगा। और अगर मैनेजमेंट ऑफ द कंपनी इज टेकन ओवर बाय द गवर्नमेंट तो वहां पर IAS ऑफिसर बैठा दिया जाता है जिसको हम लोग प्रिंसिपल ऑफिसर बोलेंगे, वो साइन कर लेगा। पार्टनरशिप फर्म है तो मैनेजिंग पार्टनर साइन कर लेगा। मैनेजिंग पार्टनर नहीं है तो कोई भी पार्टनर साइन कर लेगा। पावर ऑफ अटॉर्नी की अगेन जरूरत नहीं है। LLP लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप अगर है तो डेजिग्नेटेड पार्टनर साइन कर लेगा। और डेजिग्नेटेड पार्टनर नहीं है तो कोई भी पार्टनर साइन कर लेगा। सेक्शन 140A सेल्फ असेसमेंट टैक्स। तो रिटर्न ऑफ इनकम में जो आपने इनकम शो की है टोटल इनकम, उस टोटल इनकम पे जो आपने टैक्स कैलकुलेट करना है वो है टैक्स ऑन टोटल इनकम, जिसको हम लोग रिटर्न टैक्स कह रहे हैं। इसमें से 5 चीजें माइनस करते हैं: एडवांस टैक्स, टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स, रिलीफ अंडर सेक्शन 89, रिलीफ अंडर सेक्शन 90, 90A, 91,
DTAA का रिलीफ है, डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस एग्रीमेंट, ये आपके सिलेबस में नहीं है। और टैक्स क्रेडिट अंडर सेक्शन 115JAA मैट का क्रेडिट है, ये भी आपके सिलेबस का हिस्सा। तो ये आएगा सेल्फ असेसमेंट टैक्स, पांचों चीज माइनस करने के बाद अदर पॉइंट्स। आपको सेल्फ असेसमेंट टैक्स कब जमा करवाना है? बिफोर फर्निशिंग द रिटर्न ऑफ इनकम, रिटर्न ऑफ इनकम फाइल करने से पहले। जब भी आप सेल्फ असेसमेंट टैक्स जमा करवाएंगे तो आपको एक नंबर जनरेट होगा, चालान आइडेंटिफिकेशन नंबर, वो रिटर्न ऑफ इनकम में कोड करना पड़ता है। इस प्रूफ रिक्वायर्ड टू बी अटैच विद द रिटर्न, यस, क्या चीज आप अटैच करेंगे? चालान आइडेंटिफिकेशन नंबर, सिन नंबर जिसको आप कहेंगे। व्हाट इफ टैक्स पेड इज लेस देन सेल्फ असेसमेंट टैक्स? द अमाउंट सो पेड shall be first adjusted towards tax and then balanced towards interest. Section 139A, permanent account number. What is PAN? It is permanent account number allotted by assessing officer for the purpose of identification. Number contains 10 digit both numeral and alphabet. Who should apply? Every person who is required to file return of income should apply permanent account number in form number 49A. परमानेंट अकाउंट नंबर किसको अप्लाई नहीं करना है? नॉन रेजिडेंट को, चैरिटेबल ट्रस्ट को, या पर्सन अर्निंग ओनली एग्रीकल्चरल इनकम। आपको परमानेंट अकाउंट नंबर कोड करना कंपलसरी है ऑन ऑल रिटर्न्स। मोटर व्हीकल्स खरीदते वक्त कोड करना है। लैंड एंड बिल्डिंग अगर आप 5 लाख रुपए से ज़्यादा का खरीद रहे हैं, ज्वेलरी अगर आप 5 लाख रुपए से ज़्यादा का खरीद रहे हैं, बैंक अकाउंट में अगर आप 50,000 रुपये से ज़्यादा का डिपॉजिट करवा रहे हैं, होटल बिल अगर 25,000 रुपये से ज़्यादा का रुपये दे रहे हैं, शेयर्स खरीद रहे हैं, बेच रहे हैं, तो भी आपको परमानेंट अकाउंट नंबर कोड करना कंपलसरी है। अगर आप परमानेंट अकाउंट नंबर नहीं कोड करते हैं या गलत कोड करते हैं तो पेनल्टी है ₹10,000 और कॉन्सिक्वेंसेस है कि आपका टैक्स ज़्यादा कट जाएगा अगर आप टैक्स डिडक्टर को परमानेंट अकाउंट नंबर नहीं देते हैं तो। E-payment and e-filing compulsory for every company and every other person if they are required to get their accounts audited under section 44AB.